لیکن میں کہنا بھی جدن موت نہیں آئی پتر تسی میرے نہیں مار سکتے، جدوں آئی تو میں گھر ستے ہی آ جانی، کہنا مولانا مر گیا، تسا کہنا بڑے اچھے بندے سن، اتنی گل ہونی، اتنی دیر لگنی، مر تو انج بھی جانا ہے، چج نہ تے مریے۔ ناظرین، گزشتہ رات ایک بڑی ہی دل چیر دینے والی خبر آئی۔ عاشقان رسول کا کلیجہ پھٹ گیا، آنکھوں سے لہو بہنے لگا، کیونکہ رہبر شریعت امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اور ان کی یہ جو خبر تھی یہ پورے عالمی میڈیا نے چلائی، اور دنیا کے کونے کونے میں جو عاشقان رسول ہیں انہوں نے اس بات پر، ان کے انتقال پر بڑے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ لیکن ناظرین، ان کی جدائی کا غم ایک طرف، ان کے جانے کا دکھ ایک طرف، لیکن آج میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ علامہ خادم حسین رضوی بازی لے گیا۔ اور وہ میں کیوں کہنا چاہوں گا؟ کیونکہ اس ملک کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار ساری عمر انہوں نے حضور کے نام پر کھایا، لیکن جب حضور کی ناموس اور ان کی عزت پر بات کرنے کی بات آئی تو ان کی زبان لڑکھڑا گئی، ان کی زبان کو لکوہ مار گیا۔ لیکن اس عام سی مسجد کے امام علامہ خادم حسین رضوی، وہ ساری عمر ناموس رسالت پر ڈٹا رہا۔ اس نے کبھی حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کبھی دولت، پیسے، شہرت اور اقتدار کے لیے حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہاں پر بڑے بڑے مذہبی معزز رہنمائیں جو سیاسی ان کی پارٹیاں بھی ہیں اور سیاست میں بھی آتے ہیں، دین کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، لیکن جب حضور کے نام پر بولنے کی بات آتی ہے تو ان کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ لیکن علامہ صاحب ایسے آدمی تھے جنہوں نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی اور اس کو للکارا، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو۔ اور آپ دیکھیں وہ کچھ دنوں سے علیل تھے، لیکن اس کے باوجود جب فرانس میں گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہوا تو اس ملک میں جو ایک ہی آواز اٹھی وہ مولوی خادم حسین رضوی کی تھی۔ اور وہ بندہ یہاں سے کراچی گیا اور کراچی سے پورے ملک سے اس نے اپنے فالوور اکٹھے کیے اور پھر جا کے فیض آباد میں دھرنا دیا اور اپنا مطالبہ منوایا کہ جو فرانس کا سفیر ہے اس کو یہاں سے دھکے دے کر نکالو اور فرانس میں جو ہمارا سفیر ہے اس کو واپس بلاؤ، اور جو فرانس کی مصنوعات ہیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو۔ تو وہ ایک واحد شخص تھا جس نے اس بات پر آواز اٹھائی۔ باقی تو سارے لوگوں نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر دیے اور سوشل میڈیا پر پوسٹ لگا دیں، لیکن حضور کی عزت پر حفاظت کرنا ٹویٹر پر ٹویٹ کرنے سے نہیں اور سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے نہیں ہوتی، بلکہ جس طرح علامہ صاحب جو سردی کی راتوں میں، سخت سردی کی راتوں میں وہ علیل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ کنٹینر پر سوتے تھے۔ اور میں نے خود علامہ صاحب کو کئی دفعہ سڑکوں پر سوتے ہوئے دیکھا ہے جب ہم نے ان کے دھرنے کور کیے، اور 2017 میں جو معاملہ ہوا میں نے خود اپنی آنکھوں سے علامہ صاحب کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو علامہ صاحب آج بازی لے گئے ہیں۔ انہوں نے اس زندگی میں ایک ہی تو امتحان ہوتا ہے کہ حضور کی عزت کی حفاظت کرنا، حضور کا پیروکار ہونا اور حضور کا بول بالا کرنا۔ علامہ صاحب کی زبان پر ساری عمر ایک ہی نعرہ رہا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ غیر سے رکھا کام۔ ساری عمر انہوں نے حضور کی عزت پر بات کی اور ساری عمر انہوں نے حضور کی ناموس پر بات کی۔ کچھ لوگ کہتے تھے جی وہ قید کے بعد جب وہ گرفتار ہوئے اور ان قید کیا گیا تو اس کے بعد وہ ڈر گئے تھے، اور میں کیا جھلیا، جو بندہ گھر سے اس لیے نکلا ہو کہ میں نے آج خود بھی شہید ہونا ہے اور اپنے بچوں کو بھی عشق رسول کے لیے شہید کروانا ہے، کیا وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ کیا وہ ڈر سکتا ہے؟ اور علامہ صاحب اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ جب عاشق رسول قبر میں جائے گا تو حضور کہیں گے جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ تو آج علامہ صاحب نے حضور کی بارگاہ میں رخت سفر باندھ لیا ہے، اور میرا پورا یقین ہے کہ جب آج علامہ صاحب کی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوگی تو یقیناً حضور کہیں گے کہ جانے دو یہ تو اپنا ہے۔ جدو قبر وچ فرشتے پوچھن تو میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، اور ساڑا کوئی مقصد نہیں، نہ اسی تہاڈے کو کچھ لینا ہے، نہ اسی تہانوں کچھ دینا ہے۔ ناظرین، علامہ صاحب کے ساتھ ہماری بڑی گہری یادیں ہیں، بڑی وابستگی ہے۔ حالانکہ ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں ہماری کسی جماعت کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، ہم نیوٹرل ہوتے ہیں ہر حوالے سے، لیکن علامہ صاحب ایک ایسی شخصیت تھے کہ ہم ان کے سحر سے نکل نہیں پائے۔ جب سے ہماری ان کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی اور تب سے لے کر آج تک
और जब तक हमारी सांसें चलती रहेंगी, लामा साहब हमारे पास रहेंगे, उनकी यादें हमारे साथ रहेंगी। मेरी कुछ जो उनके साथ मुलाकातें रहीं या उनके साथ जो वक्त गुजरा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2017 में जब NA 120 के इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन, जहाँ पे कुलसूम नवाज खड़ी हुई, तब पहली दफ़ा तहरीक लब्बैक ने बाकायदा तौर पर वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया और एक बाकायदा जमात बनकर सामने आई। हम भी उस इलेक्शन को कवर करने के लिए NA 120 गए और वहाँ पर यही पता था कि नून लीग है, PTI है, ये पीपल्स पार्टी, लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर एक और जमात का भी कैंप लगा हुआ है जहाँ पर दाढ़ियों वाले लोग हैं और मीडिया का कोई बंदा वहाँ पे नहीं है। तो हम तजस्सुस होकर वहाँ पे चले गए, तो हमने पूछा कि ये किस जमात का कैंप है और इसका सरबराह कौन है। तो उन्होंने हमें बताया कि ये तहरीक लब्बैक है, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक, और वो जो बाबा जी बैठे हैं ये इसके सरबराह हैं। तो मैंने देखा कि बड़ा ही रोशन चेहरे वाला एक आदमी, बड़ा बारोब आदमी, एक आम सी चारपाई पर बैठा हुआ है और जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो मुरीदैन हैं, वो आकर उनके हाथ चूम रहे हैं और आकर अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। तो मैं अलामा साहब के पास गया, अलामा साहब से बातें हुई, बड़ी शफकत के साथ वो मिले और यहाँ से एक सिलसिला चल निकला। और अगले दिन जब इस इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बड़ी हमें तशवीश हुई, क्योंकि जो तहरीक लब्बैक थी उसने 7000 से ज्यादा वोट लिए थे और वो इस हल्का की तीसरी बड़ी जमात थी। लेकिन किसी अखबार ने, किसी टीवी चैनल ने ना ही तहरीक लब्बैक के बारे में कुछ बताया, ना ही अलामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में कुछ बताया, और ना ही ये बताया कि ये इस हल्का की तीसरी बड़ी जमात है। तो हमें बड़ी तशवीश हुई। हमने उनके जो तर्जुमान थे उनसे राब्ता किया, उनका इंटरव्यू किया, फिर हमने अलामा साहब का भी इंटरव्यू किया और बताया कि तहरीक लब्बैक जो है वो इस हल्का की तीसरी बड़ी जमात है। फिर बाकी लोगों ने भी इंटरव्यूज किए और आहिस्ता आहिस्ता ये बात चल निकली और फिर बाकायदा तौर पर टीवी चैनल्स पर और अखबारात में ये बातें शाया हुई, नशर हुई कि तहरीक लब्बैक जो है वो भी कोई जमात है और उसका इस इलेक्शन में तीसरा नंबर है। फिर अगले ही महीने नवंबर में एक जो बिल पास हुआ था, उस हवाले से अलामा साहब ने फैजाबाद का रुख किया और वहां पर धरना दिया, जो गालबन 8 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलता रहा। इस सारे जो धरना था, जो सारी चीज़ें थी, वो भी हमने कवर की और अलामा साहब के साथ मुलाकातें रहीं। और मैं आपको बताना ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं, बड़ी अफसोस होता है कि लोग उन्हें इंतहा पसंद कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो मैंने इनके धरनों में या उनकी रैलियों में, जलसों में जो मैंने एक चीज़ नोट की, वो बाकी किसी तमाम जो सियासी जमातें हैं उनसे मुख्तलिफ थी कि बाकी जगह पे हम देखते हैं कि लोग लंगर के लिए, खाने के लिए इधर से कोई लिपट रहा है, कोई इधर भागा जा रहा है, कहीं इधर से हंगामा हो रहा है। लेकिन तहरीक लब्बैक के जो कारकुन थे, मैंने उनको देखा है कि कभी हमने उनको लाइन में लगे नहीं खड़ा देखा, कभी हमने नहीं देखा कि कोई उधर हंगामा मचा हुआ है। मैंने देखा कि जो सारे कारकुन हैं वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं, उन्हें वहां पे खाना मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी उनकी जुबान पे शिकवा नहीं है। उन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है और उन्हें ना ही अपने बीवी बच्चों की फिक्र है, ना ही घर वालों की फिक्र है, क्योंकि वो जिसके रास्ते पर वो निकले थे वही इस दुनिया का मकसद है। और इसकी वजह यह थी नाज़रीन कि उनका लीडर सच्चा था। आप देखें यहाँ पर दूसरे भी बड़े बड़े मजहबी रहनुमा हैं, लेकिन वो फैन फॉलोइंग, वो जो अकीदत अलामा साहब के साथ थी उनके कारकुनों की, वो किसी के साथ भी नहीं है। और इसकी वजह यह थी कि अलामा साहब सच्चे थे, उन्होंने जो बात कह दी वो उससे फिर हटे नहीं और उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। यह नहीं कि वो दौलत, पैसे और शोहरत, इक्तदार के लिए उन्होंने समझौता कर लिया हो हुजूर की इज्जत पर। उनका सिर्फ सारी जिंदगी एक ही मुतालबा रहा, सारी जिंदगी उन्होंने हुजूर की इज्जत पर बात की। और आप देखिए उनकी जिंदगी इतनी सादा थी, मैं आपको बताऊं मैंने कितनी दफा उनको सड़कों पर सोते हुए देखा, और वो ऐसे लीडर थे, वो वाहिद लीडर हैं जो कभी जहां भी उन्होंने जलसा किया, धरना दिया, वो वहां से गए नहीं। यहाँ पर बड़े बड़े लीडर हैं जो आते हैं जी, तकरीर की और फिर अपने आलीशान महलात में चले गए। लेकिन अलामा साहब को शदीद वो अलील थे, लेकिन इसके बावजूद मैंने सख्त सर्दी में उन्हें सड़कों पर सोते हुए देखा, उन्हें कंटेनर पर सोते हुए देखा और उनका फिर गुजर बसर वही था, क्योंकि वो कहते थे कि हुजूर की इज्जत से, हुजूर की नामूस से बड़ी क्या बात है कि मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊं।
اور फैजाबाद के धरने में वो अपने बच्चों को साथ लेकर गए थे और इस यकीन के साथ गए थे कि मैं बेखौफ होकर गए थे कि मैं भी शहीद होऊंगा और अपने बच्चों को भी शहीद, मेरे बच्चे भी इस राह में शहीद होंगे, क्योंकि यही दुनिया में आने का मकसद है। और जिस तरह उन्होंने बातिल को बातिल पुकारा, जिस तरह उन्होंने उसको ललकारा, इसलिए आज कहा जा रहा है कि अहले सुन्नत यतीम हो गई। और इसमें कोई शक नहीं कि उस जैसा लीडर ना कभी आया था और ना ही कभी आएगा। अलामा साहब की जो ज़िंदगी है वो बड़ी सादगी में गुजरी। मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर उनका घर है और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी अगली वीडियो में उनका आपको घर भी दिखाऊं। वहाँ पर वो रहा करते थे और बड़ी सादगी के साथ आम लोग उनके साथ मिलते थे। ये नहीं कि वो मकबूल हो गए और इतनी चीज़ें, और उन्होंने को बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, आम सी गाड़ियों में फिरते थे और आम सा उनका लाइफ स्टाइल था। की जिंदगी नु करना है, असी इसनु की करना है? नारा लांदे जे मुंह भज जाए तो और गल की चाहिए? उच्चा बोलो, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना, ओ नहीं जाना। तो नाज़रीन, अलामा साहब जो थे वो उनकी ज़िंदगी बड़ी सादा थी, बड़ी सादगी में गुजरी। हमने देखा बड़े बाकी मजहबी रहनुमाओं को कि जब वो मकबूल हुए, उनकी शोहरत हुई, बड़े बड़े महलात बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो फिरे, अपने बच्चों को सेटल करवाया। लेकिन अलामा साहब की ज़िंदगी उसी तरह गुजरी, एक सादगी में। वही एक आम सी गाड़ी में फिरते, आम से घर में रहते और मस्जिद उनका ठिकाना होता है जहाँ पर वो सब लोगों से मिलते, वहाँ पे इमामत करवाते, जुमे का खुतबा देते और आम बंदा कोई भी जाकर उनसे मिल सकता था। और नाज़रीन, अलामा साहब की बात में जो तासीर थी, जो उनकी तकरीर में तासीर थी, यही वजह थी कि तमाम लोग उनके साथ एक खुलूस दिल के साथ उनके साथ जुड़े रहे। क्योंकि मैंने खुद अलामा साहब की तकरीरों को विटनेस किया है, वहाँ पे उनके जलसों जुलूसों को, धरनों को कवर किया है। जब अलामा साहब तकरीर करते थे तो मैंने कोई एक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसकी आंखों में आंसू ना हो। अलामा साहब खुद भी रो पड़ते थे और जितने उनके चाहने वाले, जो सुनने वाले होते थे, उनकी आंखों में भी मैंने आंसू देखे। और मैं आपको बताऊं, उनकी एक सिंबॉलिक बात है कि अगर अलामा साहब कहते कि अपने गले काट लो तो कोई एक बंदा ना होता जो वहां पे जिंदा रहता। मतलब उनकी बात में इतनी तासीर थी और इसकी वजह थी कि वो दिल से सच्चे थे, सच्चे आशिक़े रसूल थे। और वो कहा करते थे कि अगर कश्मीर आज़ाद करवाना है तो मेरी एक तकरीर वहां पे करवा दो। कुछ लोग इस बात का मजाक भी उड़ाया करते थे, लेकिन मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर जहां पे अलामा साहब तकरीर कर दें फिर कोई बॉर्डर नहीं, कोई रुकावटें नहीं और कुछ नहीं, वो कश्मीर तो क्या पूरा हिंदुस्तान ही आज़ाद करवा लेते। लेकिन खैर, अलामा साहब ने जितना भी वक्त गुजारा बड़ा अच्छा गुजारा और यही इस दुनिया का मकसद है। इश्क़ रसूल और नामूस रिसालत, इसकी हमने भी हिफाजत करनी है। और जिस तरह अलामा साहब ने की है, जिस तरह लोग उन्हें ठेकेदार कहते थे दीन के और वो बड़े तहम्मुल के साथ अपने आप को चौकीदार कहते थे, लेकिन वो जज्बाती भी बहुत ज़्यादा थे। जब हुजूर की इज्जत और नामूस की बात आती थी ना, तो फिर उनके जज्बात कोई रोक नहीं सकता था। और वो इसके जवाब में कहते थे कि जब हुजूर पाक खुद तकरीर फरमाते थे तो उनकी आंखें सुर्ख हो जाती थी जोश खिताबत से। और वो हुजूर खुद फरमाया करते थे कि मतलब जो खिताब होता है उसमें जोश होना चाहिए। तो अलामा साहब की जो तकरीरें होती थी वो जोश उन्हें उसी बात पे आता था जब हुजूर की बात होती है। अगर उन्हें किसी ने गाली दी है, क्रिटिसिज्म किया है, तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त किया है। किसी ने उन्हें ठेकेदार कहा है दीन का, तो उन्होंने कहा है कि मैं खुद तो चौकीदार हूँ। उन्होंने कहा मैं तो दीन का चौकीदार हूँ, मैं नामूस रिसालत का चौकीदार हूँ। तो इस तरह अलामा साहब ने बड़ी सादगी में ज़िंदगी गुजारी, नामूस रिसालत के लिए ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पर अमल पैरा किया। और इसीलिए मैं कहता हूँ अलामा साहब बाजी ले गए। और जब आज हुजूर की बारगाह में वो पेश होंगे तो यकीनन हुजूर कहेंगे कि ये तो अपना ही है, क्योंकि अलामा साहब कहा करते थे कि उन्हें माना उन्हें जाना, किसी गैर से न रखा काम। तो नाज़रीन, ये सारी बातें थी अलामा साहब के हवाले से। और मैं अभी जनाजा है उनका मीनार पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कोने कोने से लोग वहाँ पर जमा हो रहे हैं और यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा जनाजा होगा, तो हमें भी वहाँ पर शिरकत करनी है। और इसके अलावा अलामा साहब का जो घर है वो मैं खुसूसी तौर पर आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके अलावा हमारे जो साथी दोस्त हैं जो मीडिया के, जिन्होंने अलामा साहब के साथ वक्त गुजारा और उनके इंटरव्यूज़ किए और धरने सारे कवर किए, उनकी मुलाकातें रहीं, मैं कोशिश करूँगा कि उनकी व्यूज़ भी, उनकी यादें भी अलामा साहब के साथ जो थी वो आपके साथ शेयर करें और अलामा साहब की जो ज़िंदगी थी उसके बारे में मज़ीद बात करें। अभी मुझे इजाज़त दीजिए और इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल आरपी प्रोडक्शंस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इतनी हुजूर नाल मोहब्बत जरूर करके जाना
کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا. بس میری تو ایک آرزو ہے